Hello, future arbitrators, aspiring company secretaries, and corporate lawyers. Welcome back to another insightful session of Focus Lexicon, and we are going to continue our case law series from where we left in our last session. So, this is the case number 12, jurisdictional issue and question of limitation. When a jurisdictional issue arises, the question of limitation becomes crucial. Obviously, when there is when you have to file a case in a court, the first question is that whether this case is time barred or not. So limitation is a very important aspect to check. Now, is it relevant in arbitration matters also? This is the question. So let's read the case. The limitation plea affects the competence of the adjudicating court, and its acceptance may outs the court jurisdiction. The Honorable Court in Pandurang Dhoni Kongule versus Maruti Hari Jadhav ruled that a plea of limitation is a legal plea directly linked to the court's jurisdiction. If the limitation plea is upheld, the court loses the jurisdiction over the डिस्प्यूट. अगर लिमिटेशन जो आपकी लिमिटेशन की प्ली है अगर उसको अपहेल्ड कर दिया जाता है तो कोर्ट वहां पर अपनी जुरिस्डिक्शन लूज कर देता है. वहां पर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन लूज कर सकता है. टाइम बार्ड केस को कोर्ट एंटरटेन नहीं करता. टाइम बार्ड केस को कोर्ट एंटरटेन नहीं करता. Now, ruling in Uttarakhand Purav Sainik Kalyan Nigam Limited versus Northern Coalfield Limited. If an application under Section 11 is rejected on the grounds of limitation, the issue must be determined by the arbitrator rather than the court. This reinforces the tribunal's autonomy in addressing the limitation related concern. अब इस केस के अंदर क्या हुआ? पार्टीज अंडर सेक्शन 11 रेफर्ड टू द कोर्ट टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर. पार्टीज जो है वो कोर्ट के पास गई कि आप हमारा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो, आप हमारा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो. दूसरी पार्टी ने कहा कि भाई ये जो आपका केस है ना ये टाइम बार्ड है, दिस इज टाइम बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट. फिर यहाँ पे कोर्ट ने क्या रूलिंग दी? उन्होंने कहा कि अब ये केस टाइम बार्ड है कि नहीं है, ये हमारा काम थोड़ी है. हमारा काम तो या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट चेक करेंगे और हम आपका आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे देंगे. आपका आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा कि आपका जो केस है वो टाइम बार्ड है कि नहीं है, उसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट लगता है कि नहीं है. ये इस केस की जजमेंट है. Significance of this ruling: court recognizes the limitation issue impact jurisdiction. Judicial intervention should be minimized, leaving certain determinations to arbitral tribunals. The ruling strengthens India's pro-arbitration approach, ensuring efficiency and clarity in dispute resolution. The question of limitation plays a vital. अब इसके नीचे आप छोटा सा conclusion भी लिख के आएंगे. The conclusion of limitation plays a vital role in defining jurisdictional competence. The Supreme Court's ruling in these cases highlight the importance of allowing arbitrators to determine limitation issues, thereby promoting efficiency and procedural fairness in arbitration proceedings. दोस्तों ये जो केस है ना अब ये इतना रेलेवेंट नहीं रहा. ये जो इसके अंदर क्या कहते हैं, ये टेक्निकली ठीक नहीं है. दिस इज टेक्निकली नॉट करेक्ट. अगर आप देखें ना कि आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा कि लिमिटेशन है कि नहीं, सो दिस इज टेक्निकली नॉट करेक्ट. ये केस जो था इसके बाद और कई सारे केसेस है जहां पर इस पॉइंट को एड्रेस कर लिया गया. मैं आपको पहले वो वाला केस दिखाता हूँ जो हमारा लिमिटेशन एक्ट का. हाँ, आप आ जाएं दोस्तों. एम एस अरीफ अजीम कंपनी लिमिटेड वर्सेस एम एस एपटेक लिमिटेड 2024. ठीक है, ये जो हमारा केस है 2024 का है, इसने ओवररूल कर दिया उस केस को. अब देखो, पिटीशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 11(6) ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर. तो इसके अंदर भी पार्टीज ने एप्लीकेशन फाइल की कि सर आप हमारा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दीजिए. Question arose whether the petition was barred by limitation and whether claims were ex facie dead claims. Ex facie dead claims. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा हो गया कि जो उन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल किया, वेदर इज इट टाइम बार्ड. और इतने टाइम के बाद अगर कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो वो डेड क्लेम है. अगर कोई 20 साल बाद क्लेम मांग रहा है तो दैट इज अ डेड क्लेम. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि वेदर सेक्शन 11(6) की जो हमारी पिटीशन है वेदर इस उसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है या नहीं होता. नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर 11(6). जो ये सेक्शन 11 है इसके अंदर ऐसी कोई प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है नहीं कि कितने दिन के अंदर आपको कोर्ट के पास जाना है अपॉइंट करने. ऐसी कोई टाइम लिमिट यहाँ पे प्रिस्क्राइब तो नहीं है. लेकिन 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 सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट मेक्स द लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल टू द आर्बिट्रेशन proceedings. Issues involved: is limitation act applicable to application under 11(6) of the arbitration act? Can the court refuse reference to arbitration if the claims are hopelessly टाइम बार्ड? क्या कोर्ट रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन को रिफ्यूज कर सकता है अगर आपका केस होपलेसली टाइम बार्ड है? 20 25 साल के बाद आप लेके आएंगे लोगों को, मैं आर्बिट्रेशन इन्वोक करता हूं आफ्टर 20 years. So is it justified? Is it justified? Answer is no, it's not justified. Conclusion: the Supreme Court held that Article 137 of the Limitation Act residual provision applies to petition under section 11(6). Limitation statutes apply to arbitration proceedings just as they apply to court proceeding.
कोर्ट लेड डाउन अ ट्रू प्रॉन्च टेस्ट, ट्रू प्रॉन्च टेस्ट। अच्छा ये की वर्ड है, अगर कहीं पे आपको इस तरह का कुछ आए वर्ड तो आप पेपर में उसको फटाफट से स्पॉट कर पाएंगे। वेदर द पिटिशन अंडर सेक्शन, अब कोर्ट ने इसके लिए टू प्रॉन्च टेस्ट प्रिस्क्राइब किया कि आपको टेस्ट करना है। whether the petition under section 11(6) is barred by limitation, whether the claims sought to be arbitrated are ex facie dead claims. If either test is answered against the applicant, the court may refuse to appoint the arbitral tribunal. अगर इन दोनों में से एक भी चीज सही प्रूव हो जाती है तो कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर सकता है, कोर्ट में रिफ्यूज to appoint an arbitral tribunal. Court may refuse to appoint an arbitral tribunal. So this judgment is more relevant. This judgment is more relevant. लेकिन जो आपका मॉड्यूल है दोस्तों, हमारे मॉड्यूल के अंदर ना यहाँ पे इन्होंने ये दोनों को लिख रखा है, यहाँ पे इन्होंने वो वाली जजमेंट भी लिखी हुई है, पांडुरंग वाली भी। तो इसके अंदर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास केस आता है तो आपने सबसे ऊपर तो पहले सबसे पहले तो आपने ये वाली जजमेंट लिखनी है। इसका आप छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं, इसको बहुत डिटेल में मत लिखना, इसको बहुत डिटेल में मत लिखना, सिर्फ इसके 2 पॉइंट ये लिखने आपने और इसके 2 पॉइंट ये लिखने। उसके बाद आपने लेटेस्ट जजमेंट दे देनी है, उसके बाद आपने लेटेस्ट जजमेंट दे देनी है। वो जजमेंट टेक्निकली ठीक नहीं है। देन इसका हिंट क्या, अगर आप पेपर में इसको ढूंढना चाहें तो कैसे ढूंढेंगे, आर्टिकल 137, ये इसका हमने छोटा सा हिंट दिया हुआ है। आर्टिकल 137 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू सेक्शन 11(6). कोर्ट मस्ट चेक बोथ द लिमिटेशन ऑफ द पिटिशन एंड वेदर क्लेम्स आर डेड क्लेम्स। इफ आइदर इज बार्ड, नो आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल विल बी appointed. So I hope this is clear to you. Now let's move to our next case, that was GoQI Technologies Private Limited versus Socrati Technologies Private Limited. Dispute arose under clause 18.12 of Master Service Agreement MSA between GoQI and Socrati. GoQI filed an application under section 11 of the Arbitration and Conciliation for appointment of arbitrator. Bombay High Court dismissed the application holding that claim lacked merit and was based on non-existent dispute. तो जो हमारे GoQI ने एप्लीकेशन फाइल की कि आप हमारा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी पूरी की पूरी पिटीशन पढ़ी। वो कहता है भाई तुम्हारा तो क्लेम ही ठीक नहीं है, ये क्या क्लेम मांग रहे हो तुम, दिस इज नॉट जस्टिफाइड, आपका तो केस में मेरिट ही नहीं है, योर केस लैक्स मेरिट। तो अब यहाँ पर इशू क्या है, हाई कोर्ट रिलाइड ऑन द ऑडिट रिपोर्ट विच शोड अ पुअर कैंपेन परफॉर्मेंस बट नो फ्रॉड एंड कंक्लूडेड दैट आर्बिट्रेशन वाज नॉट जस्टिफाइड। कोर्ट कह रहा है कि इसमें तो आर्बिट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो क्या बेकार सा केस लेके आए हो तुम। तो अब यहाँ पे इशू क्या है, वेदर हाई कोर्ट एरर्ड इन डिसमिसिंग सेक्शन 11 एप्लीकेशन बाय गोइंग बियॉन्ड इट्स लिमिटेड स्कोप। क्या कोर्ट को उसके मेरिट्स चेक करने चाहिए थे, क्या कोर्ट को उस केस के फैक्ट्स चेक करने चाहिए थे, यहाँ पर क्वेश्चन ये है। तो हमारा सेक्शन क्या कहता है सर, सेक्शन क्या कहता है हमारा, सेक्शन 11(6)(a), सेक्शन 11(6)(a) कहता है द सुप्रीम कोर्ट और एज द केस में भी हाई कोर्ट while considering an application under subsection 4, 5 or 6 shall not withstanding any judgment, decree or order of any court confined to the examination of existence of arbitration agreement only। कि अगर आपके पास 11(6) में अगर आपके पास 11(6) में 11(5) में या 11(4) के अंदर कोई भी अगर आपके पास पिटीशन आती है, देन योर फर्स्ट ड्यूटी एज जो कोर्ट की फर्स्ट ड्यूटी है दैट इज टू चेक वेदर देयर एग्जिस्ट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और नॉट। इसके अंदर कोर्ट सिर्फ ये चेक करेगा कि इसके अंदर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है कि नहीं। अगर एग्रीमेंट है देन अपॉइंटमेंट विल बी एज पर एग्रीमेंट, और इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देन अपॉइंटमेंट विल बी एज पर डिफॉल्ट प्रोसीजर। ठीक है, तो कोर्ट इसके अंदर जो अपनी दो क्या कहते हैं, जो मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए थे, फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ स्क्रूटनी, फर्स्ट स्टेप इज टू चेक वेदर देयर इज एन एग्रीमेंट और नॉट, second step to check eligibility of the arbitral tribunal. So these are the first 2 steps of scrutiny. इसके बियॉन्ड कोर्ट नहीं जा सकता, कोर्ट अभी केस के मेरिट्स के अंदर नहीं जा सकता। तो इस जजमेंट के अंदर क्या कहते हैं, हमको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट held that under section 11 the inquiry is limited to prima facie existence of an arbitration agreement. High court exceeded its jurisdiction by examining facts and merits of the dispute in detail. Judicial scrutiny at section 11 stage is restricted after the 2015 amendment, therefore dismissal of application on merit was incorrect. अब इसका हिंट क्या है, अंडर सेक्शन 11 कोर्ट्स ओनली चेक प्राइमा फेसी एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नॉट द मेरिट्स ऑफ डिस्प्यूट। कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि एग्रीमेंट है कि नहीं है, वो केस की मेरिट्स में नहीं जा सकते, केस की मेरिट्स में वो नहीं जा सकते, केस की मेरिट्स में वो नहीं जा सकते। नेक्स्ट इज अजय मधुसूदन पटेल एंड अदर्स वर्सेस ज्योतिंद्र एस पटेल एंड अदर्स 2024। Petition filed under 11(6) and 11(9) of the Arbitration and Conciliation Act. Dispute between AMP Group petitioner and JRS Group respondent. Relief sought appointment of a sole arbitrator under agreement. Question arose whether SRG Group, a non-signatory to the agreement, should also be referred to an arbitration. इसको पहले ध्यान से समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है।
सर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया, मान लो एएमजी और जेआरएस के बीच में डिस्प्यूट हो गया। एएमजी जेआरएस को कहता है कमाल है यार, मेरे पैसे दे दे, गिव माई मनी बैक, प्लीज गिव माई मनी बैक, या तो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर या मेरे पैसे वापस कर, या मेरे पैसे वापस कर। तो जेआरएस कहता है यार कमाल है, आपने काम हमारा पूरा किया नहीं, हम पैसे कैसे दे दे, या तो हमारा काम कंप्लीट करो, हम पैसे देते हैं आपको। वो कहते हैं कमाल है यार, कुछ तो पैसे दे दे। तो जेआरएस कहता है मैं पूछ के बताता हूँ, मैं बड़े साहब से पूछ के बताता हूँ। कह रहे कोई बात नहीं, बड़े साहब से पूछ के बता दो। ठीक है जी, बड़े साहब से पूछ के आ गया वो। फिर उसने कहा एमपी ने, कहता भाई कमाल है, बता क्या कह रहे बड़े साहब, लाओ दे दो पैसे हमारे। नहीं जी नहीं, बड़े साहब ने तो मना कर दिया पैसे देने से, बड़े साहब ने तो पैसे देने से मना कर दिया। तो एमजी कहते हैं यार चल कोई बात नहीं, कर दिया मना, कोई बात नहीं, ठीक है, ला आधे पैसे दे दे, गिव मी माई हाफ मनी, गिव मी हाफ मनी, पार्ट पार्ट पेमेंट कर दे, हाफ मनी दे दे मेरे को। ओहो, ये तो पूछा ही नहीं बड़े साहब से, मैं बड़े साहब से पूछ के आता हूँ हाफ पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये तो मैंने पूछा ही नहीं बड़े साहब से। तो मैं फिर गया बड़े साहब के पास पूछने। तो अगले दिन आया, कहते हैं जी भी क्या कह रहे हैं आपके बड़े साहब। कहते बड़े साहब ने तो मना कर दिया, बड़े साहब ने तो मना कर दिया। यार तेरा अच्छा बड़ा साहब हुआ यार, कमाल है, मेरा एग्रीमेंट तो आपके साथ है, ये बड़े साहब से क्या पूछ के बता रहे हो। अच्छा चलो ऐसा करो ना, आपकी ना मेरी ईएमआई में पैसे दे दो, मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसे दे दो। यार कमाल है सर, ये भी फिर बड़े साहब से पूछ के बताना पड़ेगा। यार अच्छा बड़ा साहब हुआ, ऐसा कर तेरे बड़े साहब के ऊपर ही केस करता हूँ, ला जब मैंने पैसे लेने ही तेरे बड़े साहब से, तो भाई तू बीच में क्या कर रहा है, तू बीच में क्या कर रहा है, तेरे बड़े साहब को ही बुला। तो इस केस के अंदर यही हुआ दोस्तों, क्या नॉन सिग्नेटरी। अब इसका एक्चुअल एग्रीमेंट एएमपी ग्रुप का जेआरएस ग्रुप के साथ था, लेकिन जेआरएस ग्रुप के बड़े साहब कौन थे, एसआरजी ग्रुप, विच वाज नॉन सिग्नेटरी टू द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में था, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन वो हर चीज एसआरजी ग्रुप से पूछ के कर रहा था, हर चीज उसके उसके डायरेक्शंस के ऊपर कर रहा था। तो पार्टी ने कहा कि ठीक है ना यार, फिर हम एसआरजी को ही बुला लेते, जब पैसे देने ही बड़े साहब ने हैं, जब आपने पूछना ही बड़े साहब से है, तो फिर वाई नॉट बड़े साहब बी द पार्टी ऑफ द केस, है ना, हम उनके साथ ही आर्बिट्रेशन, हम नेगोशिएट ही बड़े साहब के साथ करते हैं। आप फिर कौन हो, आप कौन हो फिर। तो इश्यूज इन्वॉल्व, कैन अ नॉन सिग्नेटरी पार्टी एसआरजी ग्रुप बी रेफर टू एन आर्बिट्रेशन अलॉन्ग विद सिग्नेटरीज अंडर द एक्ट। Conclusion, Supreme Court relied on Cox King's case, held that the party under Section 21H read with Section 7 includes both signatories and non-signatories. Consent can be inferred from conduct, participation, negotiation, performance or termination of the कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टी उसकी सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है, अपना कंसेंट दे रही है, अपना क्या कहते हैं उसकी डायरेक्शंस के ऊपर वो काम हो रहा है, तो उसको भी पार्टी बनाया जा सकता है। इन्वॉल्वमेंट मस्ट बी पॉजिटिव, डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल, नॉट इंसिडेंटल। Considering the complexity, the court directed that arbitral tribunal should decide whether SRG group is veritable party after examining evidence. नॉन से अब इसका जो क्या कहते हैं क्रक्स है वो क्या है, नॉन सिग्नेटरीज कैन बी बाउंड बाय आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट if their conduct shows consent and substantial involvement. Determination of a party status is primarily an issue of consent to be decided by the arbitral tribunal. To be decided by the arbitral tribunal. Then Cox Kings Limited versus SAP India Private Limited. Cox Kings Limited versus SAP India Private Limited. Petition filed under Section 11(6) of the Arbitration and Conciliation Act, relief sought appointment of arbitrator. 11(6) की पिटीशन क्या होती है कि आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है ना। तो क्या इसके अंदर क्वेश्चन था, क्वेश्चन अरोज रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ पावर ऑफ रेफरल कोर्ट एट द स्टेज ऑफ 11(6). रेफरेंस मेड टू अर्लियर केस ड्यूरो फेलुंगरा गोवंगराम पोर्ट, ये हमारे जो केस इनके रेफरेंस दी गई। इश्यूज इन्वॉल्व, whether the referral court while exercising the jurisdiction under 11(6) can go beyond examining the existence of arbitration agreement only। तो हमने सेक्शन के अंदर क्या पढ़ा है कि कोर्ट को प्राइमा फेसी यही चेक करना है कि whether there is an agreement or not। तो ये जो हमारा इशू है वो पूछ रहा है कि whether court can go beyond examining the existence of arbitration, आंसर इज नो। ये तो यहीं से क्लियर हो गया ना, वो नहीं जा सकता, उसको एग्रीमेंट ही चेक करना है। whether question of arbitrability, jurisdiction or inclusion of non-signatory should be decided at the referral stage or by the arbitral tribunal. Supreme Court held that under Section 11(6), the jurisdiction under Section 11(6) is limited to checking the existence of arbitration agreement, nothing more, nothing less। सबसे पहले वो चेक करें एग्रीमेंट है कि नहीं है। Complex question of arbitrability, jurisdiction, inclusion of non-signatory must be decided by the arbitral tribunal under Section 16. Under Section 16. Section 16 embodies the competence doctrine, empowering the tribunal to rule its own jurisdiction. Judicial intervention at the referral stage should be minimal। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है सर, वो कह रहा है कि अगर आपके पास 11(6) की एप्लीकेशन आई है ना, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि उसके पास एग्रीमेंट है कि नहीं है, एग्रीमेंट है कि नहीं है। अब उसके अंदर जो हमारी पार्टीज है, उसके अंदर जो हमारी पार्टीज है वो सिग्नेटरी हैं, नॉन सिग्नेटरी हैं, उसको क्या कहते हैं वो एलिजिबल है कि नहीं, ये ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा।
ये ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। कोर्ट सिर्फ उनको ट्रिब्यूनल अपॉइंट करके दे दे, कोर्ट सिर्फ उसको ट्रिब्यूनल अपॉइंट करके दे दे, बाकी ये ट्रिब्यूनल की कॉम्पिटेंस है, ये ट्रिब्यूनल की कॉम्पिटेंस है। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस प्रिंसिपल। The referral court under section 11(6) only examines the existence of arbitration agreement. Arbitral tribunal decides the jurisdictional issue, arbitrability and inclusion of non-signatories under section 16. Competence doctrine. So I hope my dear friends section number 11 is very much clear to you. इसके बाद हम section number 12 पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम section number 12 onwards इसके case laws भी डिस्कस करेंगे। In last class I have asked you a question that कि जो हमारे सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन है वर्सेस जो हमारा सेक्शन नंबर 14 ऑफ इंसॉल्वेंसी है, बोथ आर नॉन ऑब्स्टेंट है ना। सेक्शन नंबर 8 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग टू एनी जजमेंट ऑफ इवन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर वहां पर क्या कहते हैं आपके डिस्प्यूट में आर्बिट्रेशन का जिक्र है तो सबसे पहले आपको आर्बिट्रेशन में रेफर करना है। वहीं पे जो हमारा सेक्शन नंबर 14 है दैट इज मोरेटोरियम, वो बार करता है किसी भी नई प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने से। अब क्वेश्चन जो खड़ा होता है वो खड़ा होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में। ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में ऑपरेशनल क्रेडिटर जब अपने कॉर्पोरेट डेटर को डिमांड नोटिस इशू करता है, कॉर्पोरेट डेटर को डिमांड नोटिस इशू करता है, कॉर्पोरेट डेटर उसका कोई रिप्लाई नहीं देता, ना उसको एक्नॉलेज करता है ना उसको डिसमिस करता है। तो यहाँ पर ऑपरेशनल क्रेडिटर ये डिसाइड करता है कि वो अब सीआईआरपी की तरफ प्रोसीड करेगा, सीआईआरपी की तरफ प्रोसीड करेगा। मीनवाइल हमारा कॉर्पोरेट डेप्टर जो है वो आर्बिट्रेशन को इन्वोक कर देता है, आर्बिट्रेशन को इन्वोक कर देता है। सो माय क्वेश्चन इज दैट कि अब अगर सीआईआरपी एडमिट होता है तो मोरेटोरियम प्रिवेल करेगा, या इसने आर्बिट्रेशन इन्वोक किया तो आर्बिट्रेशन प्रिवेल करेगा। बोथ आर नॉन ऑब्स्टेंट, बोथ आर वेरी वेरी पावरफुल एक्ट्स। कौन प्रिवेल करेगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर है, जो इसका टेक्निकल आंसर है वो ये है कि जब तक आपका सीआईआरपी एडमिट नहीं हुआ, जब तक आपका सीआईआरपी एडमिट नहीं हुआ तब तक आर्बिट्रेशन इन्वोक किया जा सकता है, तब तक आर्बिट्रेशन इन्वोक किया जा सकता है, तब तक सेक्शन 8 विल प्रिवेल, सेक्शन 8 विल प्रिवेल जब तक आपका सीआईआरपी एडमिट नहीं हुआ। वंस योर सीआईआरपी इज एडमिटेड, मोरेटोरियम लग गया, सेक्शन 14 हैज कम इनटू फोर्स, देन सेक्शन 14 ऑफ इंसॉल्वेंसी विल प्रिवेल, तब सेक्शन 14 प्रिवेल करेगा। अब सर एक इसमें हम छोटा सा डाउट आ रहा है, फॉर एग्जांपल मतलब ऐसा प्रैक्टिकली होना शायद पॉसिबल नहीं, पर ऐसा हो भी सकता है कि अगर आपकी डेट्स सिमिलर है, ऑन सिमिलर डेट आपकी सीआईआरपी की एप्लीकेशन की भी वही डेट लगी हुई है और जिस दिन उसने आर्बिट्रेशन इन्वोक किया है उस कोर्ट में भी यही डेट लगी हुई है, सिविल कोर्ट की भी सेम डेट है, दोनों की डेट सेम है, दोनों की डेट सेम है, एनसीएलटी की भी डेट सेम है, सिविल कोर्ट की भी डेट सेम है। अब ये बताओ सर, जब सेम डे है, इधर सीआईआरपी एडमिट होने वाली है, इधर आर्बिट्रेशन इन्वोक होने वाला है, इधर आर्बिट्रेशन इन्वोक होने वाला है, उधर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए, इधर अभी कोर्ट सीआईआरपी के लिए ऑर्डर करने वाला है, इधर सीआईआरपी के लिए ऑर्डर करने वाला है कि आपका मोरेटोरियम स्टार्ट किया जाए। तो अब इस केस के अंदर दोनों बिल्कुल बराबरी पे खड़े हैं। प्रैक्टिकली, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली टेक्निकली ऐसा होना ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल हमें पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का कुछ हमारे सामने कल को सिचुएशन आती है तो हम उसे कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ऐसा होना थोड़ा सा क्या कहते हैं, इतना इतना परफेक्ट टाइमिंग होना एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा देखा गया है कि कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती हैं। एक हमारे केस के अंदर ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हुई थी। तो अब इसके अंदर आर्बिट्रेशन आपका आर्बिट्रेशन प्रिवेल करेगा या फिर आईबीसी प्रिवेल करेगा, आईबीसी। सो दोस्तों जब तक सीआईआरपी एडमिट नहीं हुआ, इवन ऑन द सेम डे इटसेल्फ आर्बिट्रेशन प्रिवेल करेगा, आर्बिट्रेशन प्रिवेल करेगा। अगर दोनों पैरेलल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और अभी तक सीआईआरपी स्टार्ट नहीं हुआ है, सीआईआरपी एडमिट नहीं हुआ है, तब तक आपका आर्बिट्रेशन विल प्रिवेल। वंस योर सीआईआरपी स्टार्टेड देन आर्बिट्रेशन विल बी स्टॉप, उसके बाद आर्बिट्रेशन प्रिवेल नहीं करेगा, उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रिवेल करेगा। इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि दोस्तों आप भी इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें, यू आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स। मैं तो सीएस प्रोफेशनल के बच्चों को स्टूडेंट नहीं समझता, आई बिलीव दैट दे आर माई फेलो कलीग्स, मैं आपको क्वालिफाइड प्रोफेशनल ही समझता हूँ। तो आपको इसके ऊपर रिसर्च करनी है, आपको इसके ऊपर रिसर्च करनी है, वेदर सेक्शन 8 वर्सेस सेक्शन नंबर 14 ऑफ आईबीसी, सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट वर्सेस सेक्शन नंबर 14 ऑफ आईबीसी। इसके ऊपर आप रिसर्च करना और मेरे को कमेंट के अंदर बताना। तो इसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम प्रोफेशनल डिस्कशन कर पाए तो दैट विल बी रियली रियली वेरी वेरी गुड एंड इट विल बी अ हाई क्वालिटी डिस्कशन। सो एक्चुअल में इसका टेक्निकल आंसर तो ये है कि जब तक आपका सीआईआरपी एडमिट नहीं होता
तब तक आर्बिट्रेशन विल प्रिवेल एंड आफ्टर दैट योर आईबीसी विल प्रिवेल, आफ्टर दैट योर आईबीसी विल प्रिवेल। और ये सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में होता है, बिकॉज ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आर गवर्न बाय देयर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो रिजॉल्व होते हैं आर्बिट्रेशन के थ्रू, वो रिजॉल्व होते हैं आर्बिट्रेशन के थ्रू। सो आर्बिट्रेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। जो सीआईआरपी है ना दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आपको करियर पर्सपेक्टिव से भी बताता हूँ। जो हमारा सीआईआरपी है ना, दैट इज द लास्ट स्टेज, दैट इज द लास्ट स्टेज। सीआईआरपी तक कोई कोई केस पहुंचता, हर केस सीआईआरपी तक नहीं पहुंचता। सीआईआरपी पहुंचने से पहले बहुत सारे नेगोशिएशंस होते हैं, बहुत सारे आर्बिट्रेशन के सेशंस होते हैं, बहुत सारे सिविल सूट्स होते हैं। जब ये सारा मैटर रिजॉल्व हो जाता है उसके बाद आपका काम सीआईआरपी तक पहुंचता है। सो एज अ फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी, एज अ न्यूली क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि नाउ यू आर एट सी एस प्रोफेशनल स्टेज और यू माइट बी इन योर लॉ कॉलेज, यू माइट बी इन योर फाइनल ईयर ऑफ लॉ। So as a lawyer, as a fresher lawyer, as a fresher company secretary, if you want to make your career in IBC, if you want to make career in arbitration, so then arbitration helps you more than IBC, because pre CIRP there are so many arbitrations, so many negotiations, so many civil suits. So as a individual professional, your stake increases, your stake increases। आपका क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्टेक इन्वॉल्व हो जाता है केस के अंदर। कल को अगर ये केस सीआईआरपी में गया, then you are the representing authority, then you are the representing advocate, और you will be the representing company secretary। ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आप 10 साल बाद बनेंगे, लेकिन मीन वाइल आपको अगर एक कोई मीनिंगफुल एक अथॉरिटेटिव काम करना, तो यहाँ पर आपके पास जो क्लाइंट का सर्कल रहेगा, दैट दैट विल बी ह्यूज, दैट विल बी ह्यूज। सीआईआरपी के अंदर आपको एकदम से सीआईआरपी नहीं मिलने वाला, एकदम से सीआईआरपी किसी को नहीं मिलता। आफ्टर 10 years of practice, then also you have to make a reputation, then also you have to make a reputation। So why to wait for 10 years, why to wait for 10 years to give an IBC exam, then to become an insolvency professional? Why not to take the pre insolvency work? प्री इंसॉल्वेंसी वर्क बहुत सारा है, पोस्ट इंसॉल्वेंसी वर्क बहुत सारा है। मीनवाइल आप इंसॉल्वेंसी को असिस्ट भी कर सकते हैं, बट दिस इंक्रीजेज योर स्टेक, दिस इंक्रीजेज योर स्टेक। आपके पास जड़ है, आपके पास केस की जड़ है, आपके पास केस का स्टेक है। रेफरल केस नहीं है, डायरेक्ट केस है। और जो लोग काम करते हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट केस कितना वैल्यूएबल होता है, रेफरल केस से डायरेक्ट केस आपके पास कितना वैल्यूएबल होता है। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन के अंदर। मीनवाइल आप इसके ऊपर रिसर्च करके आए और कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, ठीक है जी।